to continue with the class for chapter third, that is mineral and power resources. तो अभी तक हमने पिछली क्लासेस में मिनरल्स की डेफिनेशन देखी. दैट इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, दैन इट इज़ फाउंड इन पर्टिकुलर rock, and it is also found in such areas which are not accessible, right? So we can see the definition here. They're found in rock formation and also in not easily accessible areas, and they are found by the natural process without any human interference, and are identified on the basis of their physical and the chemical properties, right? And then we have seen your types of minerals. In the types of minerals we have seen your metallic, non-metallic, and metallic is further divided into ferrous and non-ferrous. Okay, then we have seen the extraction of minerals. In extraction of minerals we have seen the three processes, that is mining, drilling, quarrying. And mining is further classified into two types, that is your open cast mining and shaft mining. Okay, then we have come to your distribution of minerals. So distribution of minerals, we have seen your metallic minerals that are found in your igneous and the metamorphic rocks, and non-metallic minerals that are found in the sedimentary rocks. And mineral fuels, those are found in the coal and the petroleum. Okay, तो ये हमने distribution of minerals में देखा था. Then we have come to the distribution of minerals in the various continents. So when we have come to Asia, we have seen that Asia is the largest iron ore depositor. Okay, it has the large iron ore deposits, plus it produces more than half of the world's tin. And when we come to another continent, that is your Europe. Okay, we have come down. फाइन, तो यूरोप में हमने देखा था कि यूरोप जो आपका कॉन्टिनेंट है, इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. ओके, सो वी विल जस्ट अंडरलाइन दिस. आप इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे. एंड व्हेन वी कम टू नॉर्थ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका में आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे आपके मिनरल्स जो हैं वो 3 जोन में बटे हुए हैं. और इसमें हमने वेस्ट कोर्डिलाज में देखा, इट हैव द वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. Then we have come to the next continent, that is your South America. In South America we can see your Brazil having the largest production of high grade iron ore. Then Chile and Peru, leading producer of copper. Brazil, Bolivia, world's largest producer of tin. Okay, then when we come to the Africa, we can see Africa is very rich in the mineral resources, and it is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. And Australia is the largest producer of bauxite in the world, plus Australia have the largest deposits of gold. Kalgoorlie and Coolgardie places that are the west parts of Australia. अब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, तो अंटार्कटिका में भी ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है कि यहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके कोल के डिपॉजिट मिल सकते हैं, या फिर आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल में भी प्रेजेंट है इन द कमर्शियल quantities. After that we have seen various uses of the minerals. तो जब हम uses of minerals पे आते हैं, we have seen that minerals are used in many industries for making the jewelries. Then copper is used for making products from coins to pipes. Then silicon used in computer industries. Okay, aluminum in the kitchen cookware, airplanes, bottling industry, etc. right? अब जब हमने मिनरल्स के इतने यूजेस देख लिए हैं कि मिनरल किस प्रकार से हमारे लिए इतना यूज़फुल है, फिर अब हम ये भी देखते हैं कि यूज़फुल होने के साथ साथ क्या है, मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. तो इसके साथ दो प्रॉब्लम है. पहला क्या है, एक तो ये जिस तेज़ी से एग्जॉस्ट हो जिस तेज़ी से ये आपका एग्जॉस्ट हो रहा है, ओके, प्लस पल्यूशन. ओके, सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स विद द मिनरल्स. तो इससे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको अब दूसरा कोई रास्ता देखना है. ओके, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. हमको मतलब मिनरल्स को पहले बचाना पड़ेगा. ओके, एंड हाउ वी हैव टू कंजर्व, सो वी शुड कंजर्व इट फर्स्ट ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस. ओके, वी हैव टू reduce its wastage, and second is the your recycling of metals, right? अब उसके बाद हमने देखा पावर रिसोर्सेज किस प्रकार से हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट पावर रिसोर्सेज हैं, और आज के टाइम में पावर रिसोर्सेज के बिना हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस कुछ भी काम नहीं कर सकता है. तो पावर रिसोर्सेज में भी हमने दो प्रकार के क्लासिफिकेशन देखे. सो फर्स्ट इज़ योर
conventional type and second is your non-conventional type. That is the two types of power resources. Okay, conventional power resources and non-conventional power resources. तो conventional power resources which have been in the common use for long time, और इसमें भी हम दो प्रकार देखते हैं, फायरवुड एंड द फॉसल, राइट। और फायरवुड और फॉसल के बाद फिर हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे, मैंने आपको ये पूरा चार्ट पेपर एक्सप्लेन किया था। ओके, देन वी हैव सीन योर कोल, और जब हम कोल में आते हैं तो हम फिर थर्मल पावर की बात करते हैं। तो थर्मल पावर क्या होता है, द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। ओके, यानी कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल पावर। ओके, और कोल को हम लोग और क्या कहते हैं, वी रिफर कोल एज अ बरीड sunshine, right? And then afterwards we come to petroleum. Then petroleum, when it comes from in its original form, we get it as a thick black liquid, ठीक है। और इसको हम और क्या कहते हैं, black gold. Why? Because of its color, okay, and plus why it is so much it is valuable, ठीक है। एक तो इसकी कलर की वजह से जो इसके ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, प्लस ये हमारे लिए जो इतना वैल्यूएबल है उसकी वजह से हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड का नाम देते हैं। ओके, देन वी कम टू द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इट इज़ फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, और जब हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो साथ में ही हमको नेचुरल गैस भी मिलता है। ओके, एंड वी हैव सीन द वेरियस यूजेस ऑफ नेचुरल गैस हियर, ओके, in the power sector to generate electricity, then for heating purpose industries etc. So many uses we have seen the natural gas. Okay, और फिर हमने आपका देखा था हाइडल पावर। हाइडल पावर मीन्स द पावर विच वी जनरेट फ्रॉम द वाटर, ठीक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से आपका रेन वाटर, रिवर वाटर को डैम्स में, रिजर्वायर में स्टोर करके उसको बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है। ओके, देन दिस फॉलिंग वाटर इट turns the blade, the turbine blades, and which in turn moves the generator and which produces the electricity. So this is known as your hydroelectricity, means electricity which is produced by using the water, that is known as your hydroelectricity. फिर हमने बहुत सी जगह के नाम देखे थे जहाँ पे कि आपका हाइड्रल पावर स्टेशन प्लांटेड है, जैसे आपका विदेश में आपने देखा, ठीक है, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, और इंडिया में आपका भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, राइट। फिर हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ने के बाद हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आते हैं, ठीक है। तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, ड्यू टू इट्स शॉर्टेज एंड ड्यू टू द pollution we move towards the non-conventional sources of energy such as solar energy, wind energy and tidal energy, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा और हवा और आपका टाइड्स, ठीक। तो सोलर एनर्जी में हमने देखा कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स में, ओके, टू जनरेट द electricity for heating and the lighting purpose, okay, and we also use it in the solar heaters, solar cookers, solar dryers, then for community lighting and also your traffic signals. Then when we move towards your wind energy का मतलब हम किस प्रकार से हवा का इस्तेमाल करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। then we see your wind energy is a inexhaustible source of energy, ठीक है। एंड पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल प्रीवियसली आपका ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन के लिए और पानी को लिफ्ट करने के लिए होता था, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउ द विंड मिल इज़ यूज टू प्रोड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने पूरी प्रोसेस देखी थी आपकी कि किस प्रकार से आपकी विंड एनर्जी आपके विंड जहाँ पे ऐसा एरिया जो कि कोस्टल एरिया है या फिर माउंटेन एरिया है, जहाँ पे आपका हवा का बहाव बहुत तेज़ और स्टडी होता है, ठीक है, हवा बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पे इनको प्लांट किया जाता है ताकि आपकी विंड मिल जब मूव करती है तो किस प्रकार से इसके पार्ट में जो शाफ्ट लगा होता है उसके मूवमेंट से जनरेटर काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर ये जाके आपका इलेक्ट्रिसिटी सबको सप्लाई की जाती है, ठीक है। देन वी हैव कम टू योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने देखा कि जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे आपका यूरेनियम 235, ठीक है, इसमें हम लोग किस प्रकार से इसको फिशन प्रोसेस जो होता है उसमें हम एनर्जी जनरेट की जाती है और ये लगातार मल्टीप्लाई होती है, ठीक है।
तो इसको हम मॉडरेटर के ज़रिए इसको हम कंट्रोल करते हैं, ओके, एंड देन इट इज़ यूज्ड टू एमिट योर पावर, राइट। आफ्टर दैट आज हम देखेंगे आपका जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब हमारी क्लास जो है आज, बाकी जो हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट टुडे विल स्टार्ट विद द जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है वह एनर्जी जो हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, ठीक है, दैट इज़ द हीट एनर्जी। यानी पृथ्वी की जो गर्मी है उसको हम किस प्रकार से कैप्चर करते हैं, उसको एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके। सो द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड योर जियोथर्मल एनर्जी। देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस निकल के आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर क्वेश्चन आंसर में, ओके, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, राइट। सो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, यानी वह तापीय ऊर्जा जो हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर, ठीक है। अभी देखिए आपकी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो कोर का टेम्परेचर है ना, आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाता है, और पृथ्वी के आंतरिक जो टेम्परेचर होता है ये आपकी जो सूर्य का, सन का जो सरफेस का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा होता है, ओके। तो इस एनर्जी को हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं उसको हम देखते हैं कि ये बढ़ती है। तो अभी ये क्या होता है, ये जो आपका अर्थ है, आपको पता है कि अर्थ के कोर में अंदर की तरफ क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है, ओके। पिघला हुआ जो आपका पोर्शन, वो आपने पूरा आगे पढ़ा हुआ है किस प्रकार से अर्थक्वेक जब आता है, ज्वालामुखी फटता है तो ये आपका जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, ठीक। तो ये जो अंदर भी रह जाता है, ठीक। 2 प्रकार के मैग्मा आपने पढ़े हैं ना, एक जो बाहर होता है, एक जो अंदर होता है। तो जो अंदर वाला मैग्मा होता है, कई बार क्या होता है, पानी जो पृथ्वी पर या तो बारिश के ज़रिए या किसी भी तरीके से जब सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये धीरे धीरे इसके पृथ्वी के अंदर जाता है, ठीक है। तो कई बार ये पानी जो मैग्मा थोड़ा ऊपर मिल जाता है तो उसके कांटेक्ट में आने से पानी क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, ओके, इट गेट्स हॉटर, ओके। तो अभी जब ये गर्म होता है तो बहुत अधिक गर्म होने के बाद इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो डेंसिटी कम होने के बाद फिर क्या होता है, फिर ऊपर की तरफ आता है, सरफेस की तरफ, ठीक है। अब ये फिर से ऊपर आता है तो कई बार ये एक फव्वारे के रूप में, ठीक है, एक छोटे सा स्प्रिंग की तरह ये क्या होता है, फव्वारे के रूप में बहना शुरू हो जाता है, या किसी पत्थर के क्रैक से निकल के गिरता है, या ये स्टीम मतलब भाप के रूप में ही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, राइट। So sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. So this heat energy can be used to generate power. Okay. तो अभी देखिए geothermal energy in the form of hot springs is used for your cooking, heating and bathing for several years. ठीक है, बहुत सालों से हम इसको खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए या फिर नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा ना हॉट स्प्रिंग बाथ, ठीक है। तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑटोमेटिक आपको गर्म पानी मिलता है जो धरती से अपने से नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बाहर आता है, ठीक है। अब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा आपका जियोथर्मल पावर प्लांट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पृथ्वी के अंदर जो गर्म पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, ओके। और मुश्किल से इसकी बहुत जगह ये मुश्किल से 3 किलोमीटर के डेप्थ में ही मिल जाता है इन लोगों को, कि सिंपली इन लोगों को थोड़ा सा बस एक ड्रिलिंग करके अपना पाइप वगैरह लगा के लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नाउ यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। और हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा जियोथर्मल पावर प्लांट है ये मणिकरण में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और पुगा वैली इन द लद्दाख, ओके। सो दिस वाज योर जियोथर्मल पावर प्लांट। सो नाउ लेट अस, देखिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन के रखा है कि ये आपका जो सरफेस है, ठीक, ये गर्म पानी है, ओके। सो कई बार ये गर्म पानी जो है पत्थरों की चट्टानों से, क्रैक से ऑटोमेटिक रिस के बाहर आता रहता है, या कई बार भाप के रूप में ही बाहर आता है, ठीक। और कई बार हम क्या करते हैं, जो हमको सतह में मिल जाता है गर्म पानी, तो वहाँ पे हम लोग अपना जो भी सिस्टम होता है उसको, अप्लायंस को यूज़ करके हम लोग इसको फिर अपने प्लांट तक लाते हैं। वहाँ पे फिर ये पानी आपका टरबाइन रन करता है, द सेम प्रोसेस गोज़ ऑन, एंड दिस टरबाइन एज इट मूव्स, सो द जनरेटर स्टार्ट्स वर्किंग and the generator produces the electricity which we use, okay. Then let us come to the tidal energy, okay. So the energy generated from the tides is called your tidal
एनर्जी, ठीक है। अब ये टाइड्स जो हमारे समंदर में 2 से 4 बार पूरे दिन में आ जाती हैं, इस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जब टाइड आती हैं तो जो ओशन करंट, समंदर के अंदर जो करंट्स होते हैं, इसका वेग बहुत तीव्र होता है, ठीक। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो इसमें नाउ टाइडल एनर्जी कैन बी हैरेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी, एंड हाई टाइड एनर्जी of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France and Gulf of Kutch in India have the huge tidal mills form. ठीक है। तो अभी आपका जो समंदर है, ठीक है, इसके अंदर ये लोग इसको प्लांट करते हैं, ठीक। और इसके जो ये शाफ्ट हैं या जो ब्लेड्स हैं, तो एज द टाइड कम्स, जब आपकी हाई टाइड होती है, ठीक है। हाई टाइड कब होती है? जब आपका मून जो है वो अर्थ के इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है, ओके। तो हाई टाइड होती है। सो एज द हाई टाइड कम्स, तो ये जो आपका मोशन है पानी का, ठीक है, इट इज़ हैविंग द ग्रेटेस्ट एनर्जी, ठीक। तो ये एनर्जी जब फ्लो करती है तो ये आपका जो ये रोटेट करने लगता है, एंड एज इट रोटेट्स द सेम प्रोसेस बिगिंस, ओके, एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज्ड बाय अस, ओके। सो अभी आपने विदेश में देखा, ठीक है, जो आपका रशिया है, फ्रांस है, और हमारी जो इंडिया की बात करते हैं, जो गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे हम लोगों का ह्यूज टाइड मिल फॉर्म्स पाया जाता है, राइट। सो दैट वाज योर टाइडल एनर्जी। नाउ व्हेन वी कम टू योर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर बायो गैस, ठीक है। अभी ये बायोगैस क्या है? अभी हमारे जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे हमने फल खाए, सब्ज़ी हैं, उनके छिलके हैं, या फिर आपका जो एनिमल डंग है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो कि पृथ्वी में जब एक बार मिलती हैं तो ये सड़गल जाती हैं, यानी उसमें एक खाद का रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, ओके। सो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायो गैस, ठीक। अभी क्या होता है, जैसे जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे हम एनिमल डंग को लेते हैं, ठीक है। सो वी कलेक्ट द डंग, वी मिक्स इट इनटू द वाटर, ओके। सो दिस इज़ अ स्लरी। स्लरी मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका हमने एग्जांपल दिया आपका एनिमल डंग का, ठीक है। तो एनिमल डंग को हमने आपका पानी के साथ मिक्स किया, फिर हमने इसमें पोर किया, फिर ये जो आपका स्लरी है, ठीक है, ये आपका पाइप से होते हुए आपका गैस टैंक में जाएगा। अब ये जो गैस टैंक होता है प्रॉपरली सब तरीके से, हर तरह से सील रहता है। वाई? बिकॉज इट इज़ एन अनएरोबिक प्रोसेस। अनएरोबिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये जो अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी, ये बिना ऑक्सीजन की होगी, ठीक है। तो 1 मंथ के टाइम में ये जो हमने अंदर स्लरी डाला है, ये अंदर सड़ेगा, गलेगा, और इसमें बहुत तरह की आपकी जो गैसेस है ना, वो प्रोड्यूस होंगी, ओके। लाइक योर मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सब प्रोड्यूस होती हैं, ओके। तो रीड हियर, द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बायोगैस डाइजेस्टर्स, ओके। इस बायोगैस डाइजेस्टर में हमने आपका स्लरी डाला, ठीक है, इसमें जो है आपका बैक्टीरिया वो इसके ऊपर काम करता है, उसको डिकम्पोज करता है, एंड दिस इट एमिट्स द बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपके बायोगैस में जब ये आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, इसमें से 2 गैस एमिट होती हैं, एक आपकी है मीथेन, ओके, और दूसरी आपकी है CO2, राइट। सो बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड इट प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, ठीक है। तो आपने यहाँ से अपनी बायोगैस आपको मिल गई, ठीक। फिर अब इसके बाद जो बच गया वेस्ट, ठीक है, मैन्योर, इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, फर्टिलाइज़र, ओके। इसको हमने बहुत से अपने पेड़ पौधों में उसमें हमने डाल दिया, तो इसने हमारे लिए फर्टिलाइज़र का काम कर दिया, ओके। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ योर बायोगैस वर्क्स, राइट। So energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy both difficult as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future, ठीक है। तो एनर्जी हमारे आस पास हर जगह एनर्जी है, ठीक है। अब इस एनर्जी को हम किस प्रकार से, जो भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने में ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, लेकिन अगर हम एनर्जी को बचा लेंगे तो एनर्जी को बचाना ही एनर्जी को जनरेट करने के बराबर होता है, ओके।
सो आई थिंक योर होल चैप्टर इज़ completed. तो एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा बिगनिंग से देख लेते हैं. विल जस्ट सी. So this was your chapter, mineral and power resources. Okay, so first we have seen your mineral definition, then we have seen where your minerals are formed, right? Okay, after that we can see your minerals are formed or they are created by the natural process without any human interference, and their identification basis are of two types: physical properties and chemical properties. Then what you have to learn here about the types of minerals: two types, metallic, non-metallic. In metallic you further classify into ferrous and non-ferrous. Ferrous means which contain iron, non-ferrous means which do not contain iron. And when we move further, then we come to the एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम खनिजों को पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करते हैं. देन वी कैन सी हियर थ्री प्रोसेस. फर्स्ट माइनिंग. ओके, first you will see your mining process, then second is your drilling, and third is your quarrying. So mining में we have seen two process further. First is your open cast and another is your shaft mining. The open cast mining में we have seen your that the minerals are obtained from the shallow depth, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रहते हैं. और shaft mining मतलब जहाँ पे हम बहुत गहराई से मिनरल को प्राप्त करते हैं. Then we come to the drilling. Drilling means where the deep bores are made. So deep bores drilling means where the wells are bored. ठीक है, गहरे कुएँ जहाँ पे बनाते हैं और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रिलिंग. और क्वेरिंग मीन्स when the minerals lie near the surface and they are simply dug out, they are known as quarrying. Okay, तो ये प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, ये आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, आई टोल्ड यू टू टाइप्स: metallic in the igneous and metamorphic, and non-metallic in the sedimentary, and your mineral fuels in the sedimentary strata. Okay, then we come to Asia. तो एशिया में हम लोगों ने देखा कि आपका एशिया में जब हम लोग आते हैं तो एशिया में आपका आयरन ओर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है. ठीक है, और एशियन कॉन्टिनेंट को जब आप देख लेते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी हैव कम टू योर यूरोप. देन यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. देन नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन आप देखते हैं जहाँ पे मिनरल आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. और इसके वेस्टर्न कॉर्डिलराज में यू कैन हैव अ वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. देन वी कम टू साउथ अमेरिका. हियर वी हैव अ गुड deposition of iron ore. Okay, then we have your tin and copper. Then Africa is the largest producer of diamond and gold and platinum in the world, right? Then Australia is the largest producer of bauxite, plus it is having the largest deposit of gold. And in Antarctica it is predicted to be a great deposit of coal, iron ore, gold and silver, and oil may also be present in the commercial quantities. फिर हमने यूजेस ऑफ मिनरल्स देखे. देन वी हैव सीन कि हमको मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, फिर हमने स्टडी किया पावर रिसोर्सेज के 2 प्रकार, दैट इज़ योर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. इन द पावर सोर्सेज वी हैव सीन योर फायरवुड, राइट, एंड प्लस वी हैव सीन योर कोल. आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट द पेट्रोलियम. ठीक, पेट्रोलियम के बाद हमने नेचुरल गैस रिफर किया. एंड देन वी हैव सीन द हाइडल पावर, दैट इज़ द पावर जनरेटेड बाय यूजिंग द water. After that we have come to your non-conventional source of energy. Under that we have studied about your solar energy, various uses of सोलर एनर्जी. हम सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर्स में, सोलर पैनल में. देन वी कम टू विंड एनर्जी, किस प्रकार से विंड एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, विंड मिल बना के, जहाँ पे विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. देन वी कम टू योर न्यूक्लियर पावर, जहाँ पे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम-235 या फिर थोरियम का यूज़ करते हैं आपका एनर्जी जनरेट करने के लिए. ओके, देन वी हैव कम टू योर जियोथर्मल एनर्जी, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा. सो द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड योर जियोथर्मल एनर्जी. ओके, यानी वो एनर्जी जो हमको पृथ्वी के ताप से मिलती है और इसको हम किसे आपका पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, देन वी हैव सीन योर टाइडल एनर्जी. सो द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, राइट. देन वी हैव कम टू योर बायोगैस.
In biogas, we use the organic waste to produce the energy. Okay, यानी जिस प्रकार से हम इसको ऑर्गेनिक वेस्ट यानी सब्जियां हो गया, एनिमल डंग हो गया, कैसे हम इसको जो है किचन वेस्ट वगैरह को गैशियस फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यानी ये हमारे लिए ईंधन बन जाता है. ठीक, और ये हमारे लिए नेचुरल होता है. ठीक, और ये जब हम लोग इसको एमिट करते हैं तो हमको इसमें आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस प्राप्त होती हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं. और प्लस जो इसका रेसिड्यू बच जाता है उसको हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र. राइट, सो दिस वाज ए होल चैप्टर. और अगले क्लास में हम इस चैप्टर को, जो थोड़ा बहुत हमारे लिए टेक्स्ट बुक के आपके जो बॉक्सेस रह गए हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अक्सर आप लोग इसको पढ़ते नहीं हैं most probably, but you should learn this. So we should learn the tap your boxes, and we will also see the exercise. Okay, with that we will finish our chapter. तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. प्लस you understood the whole chapter, and if it is being profitable to you, useful to you, so please subscribe my channel, dear future here I come. Like it, share it, and please comment on it. So till the next class, see you, bye bye.